very good evening. This is All India Radio Itanagar with producer Gyati Hangu. This is Morgan welcoming you to the weekly sports roundup. Ace Taekwondo player Rupa Bayer will represent India at the 19th Asian Games. Rupa Bayer is the first athlete from India to make it to the top 25 World Taekwondo ranking and also has secured many medals for the state and country in the past. She also secured 8th position in Asian ranking and holds India rank number 1 in Taekwondo. She was selected to represent India at the 19th Asian Games after she secured gold medal in Senior 1 Pomse female category during selection trial. Mesom Singhi has been selected to represent India in most prestigious Asian Games, which is scheduled to be held this October in China. She is a medalist in both Commonwealth Karate Championship tournament. She won gold in South Africa in 2018 and a bronze medal in Birmingham in 2022. Miss Joni Mankia won gold medal in female 65 kg weight category in individual Kumite. She has been selected for the upcoming 19th Asian Games 2023. And in today's series of a tete-a-tete with a sports person from the state, we have with us in our studio Miss Ibu Lolen. She's an international arm wrestler from the state. So let's hear from Miss Ibu. Ibu, first of all, a very, very warm welcome to our studio. Thank you. Before we start our conversation, I would like to wish you a very hearty congratulations for winning not only national but international medal back-to-back recently. So congratulations for that. Thank you. Okay, so to begin with, tell us something about yourself. Okay, firstly, thanks to All India Radio for inviting. Firstly, I would like to give my introductions. My name is Ibu Lolen and I am from Allo, West End District, Kombo Jidin village, and I have completed my master's in English in 2017, and I have 4 brothers and I'm only daughter of my family. Since when have you started arm wrestling, and why did you choose arm wrestling in spite of having many other sports? Okay, actually since from childhood I was very interested in sports, like running race bolo, like high jump, long jump, जो भी field में हो, I was very interested. I was very good in sports. तो मुझे ऐसे था कि हर फील्ड में मेरा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. और आफ्टर ग्रेजुएशन क्या हुआ कि पहले पढ़ाई करना था मुझे, तो पढ़ाई करने के बाद जो है ये आर्म रेसलिंग का एक एडवर्टाइजमेंट निकला था. तो मेरा फ्रेंड ने बोला कि तू इस पर ट्राई करके देख. मेरा फ्रेंड, उसका नाम भी लेना चाहती हूँ मैं, उनका नाम अपी तामिर बोल के, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है. तो उनका थ्रू मैंने आर्म रेसलिंग को स्टार्ट किया. तो उधर से मेरा ये जर्नी शुरू हुआ 2015 से. तो उसको भी मैं बिग थैंक्स देना चाहती हूँ. Okay, and during initial days, what kind of difficulties or problems you had to face? इनिशियल स्टेज बोले तो इनिशियल स्टेज में इतना डिफ़िकल्ट नहीं था. बट जैसे जैसे मेरा कॉम्पिटिशन्स लाइक नेशनल इंटरनेशनल गया, तब जाके उसमें बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा. प्रॉब्लम्स बोले तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे स्पेशली हम लोग का यहाँ पे जिम वगैरह भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर नहीं है. तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस किया. और स्पेशली हम लोग को क्या कि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम रहता है. जब बाहर जाता है तो हम लोग को बहुत मैनेज खुद करना होता है. तो इसमें बहुत प्रॉब्लम फेस किया मैंने. मतलब इनिशियल डेज में आपने प्रॉब्लम्स खास फेस नहीं किया जो अभी आप कर रहे हैं? हाँ, अभी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है. Till now, how many medals have you won? Till now, I got 13 medals, like 5 gold, 5 bronze and 3 silver. Okay. तो स्टेट से लेके इंटरनेशनल तक. आपने इंटरनेशनल की बात की है. You went to Dubai. So how was the experience there, and how was the experience here in India? Okay. एक्सपीरियंस तो अच्छा था. तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि बाहर जाने के लिए हम लोग को क्या होता है कि बहुत मेहनत करना होता है ना. बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है, कि ऐसे नहीं है कि प्रैक्टिस करके मतलब सीधा जाओ, ऐसे नहीं होता है. तो बहुत सा लाइक अभी तक तो बोलने से मेरा एक्सपीरियंस इंटरनेशनल में 3 टाइम्स गया है. 3 टाइम्स. फर्स्ट 2018 में गया मैंने, किर्गिस्तान में गया. तो वो नोमैड गेम था. वो नोमैड गेम में वो जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन था. तो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, हम और एक लड़की काटू यमचा बोल के. लास्ट टाइम टर्की में गया, वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया. अरुणाचल से हम अकेला लेडी था. और उसमें तो जस्ट पार्टिसिपेशन किया हमने, कुछ मेडल नहीं मिला. बट दिस टाइम आई गॉट ब्रोंज
इन दुबई, वो भी एशियन गेम पे मिला। तो एक्सपीरियंसेस तो बहुत मेरा अच्छा था। ओके, एंड आपने क्या डिफरेंसेस पाए हैं इंटरनेशनल गेम्स में एंड नेशनल गेम्स में? नेशनल और इंटरनेशनल में तो काफ़ी डिफरेंसेस हो जाता है, क्योंकि नेशनल में तो स्टेट का होता है, तो स्टेट में भी ऐसे नहीं है कि इजी नहीं होता है, बहुत सा लाइक स्टेट से आदमी पार्टिसिपेंट्स लोग बहुत ज़्यादा आता है, तो बहुत टफ कंपटीशन होता है। यहाँ से सिलेक्ट करके हम लोग को जाना होता है, स्टेट से सिलेक्ट करके नेशनल में होता है, नेशनल से फिर इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में क्या होता है, बहुत सा कंट्रीज लोग आता है, तो उसमें ज़्यादा टफ रहता है। ओके, एंड जैसे कि आपने कहा कि यू आर द ओनली डॉटर इन योर फैमिली, सो आई वुड लाइक टू नो हाउ सपोर्टिव आर योर फैमिली मेंबर्स? यस, आई एम ओनली डॉटर ऑफ माई फैमिली। तो स्टार्टिंग से लेके मेरा फैमिली, मेरा रिलेटिव्स हमको बहुत सपोर्ट किया, अभी तक सपोर्ट कर रहा है मेंटली, फिजिकली। उसी की वजह से आज हम यहाँ हैं। And for a sports person to participate in any competition, he or she has to be fit physically. So I would like to know, how do you keep yourself fit? सबसे पहले तो फिट रहने के लिए तो रूटीन बनाना होता है, तो मैं ज़्यादातर रूटीन मेंटेन करता है। तो रूटीन लाइक मेरा ऐसा रूटीन होता है कि रात को जैसे जल्दी सो जाता है हम ना, बिफोर 10 हम सो जाता है, एंड देन मॉर्निंग आई हैव टू वेक अप लाइक वेरी अर्ली, नो। तो मॉर्निंग मेरा मतलब रूटीन सेट रहता है कि मॉर्निंग इतना टाइम को उठना है, इतना टाइम को फ्रेश अप करना है, एंड देन इतना बजे हमको जिम जाना होता है। आफ्टर दैट डे टाइम में कितना हमको पावर नैप लेना है, ऐसे मैनेज करता है, और शाम टाइम को कितना प्रैक्टिस करना है। तो अकॉर्डिंग टू रूटीन हम वो चीज़ फॉलो करता है खुद को फिट रखने का। ओके, एंड डू यू मेंटेन एनी स्पेशल डाइट? हाँ, डाइट का बारे बोले तो अबाउट डाइट, तो डाइट में हम लोगों को मेंटेन करना होता है, जैसे हम लोग को प्रोटीन वगैरह बहुत अच्छा से लेना होता है, क्योंकि हम लोग का ये गेम प्रोफेशनली स्ट्रेंथ का होता है, तो हम लोग को डाइट में भी बहुत सा लाइक खर्चा होता है। इतना इजी नहीं है इसमें भी, क्योंकि हम लोग को बहुत खाना होता है। तो इस बार भी मैंने बहुत वेट गेन किया, क्योंकि हम 65 में खेलता है। तो हमको ऐसे ताकि तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था हम थोड़ा, तो हम ऐसे ताकि हमको 70 में खेलना है, तो वेट ज़्यादा करके ना, तो हम बहुत ज़्यादा वेट भी गेन कर दिए इस बार, मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया। तो हम लोग ऐसे कुछ प्रॉपर डाइट बोल के नहीं होता है, मतलब हम लोग को बहुत, लेकिन प्रोटीन वाला बहुत खाना पड़ता है। इन अ डे आप कितने घंटों के लिए एक्सरसाइज करते हैं? प्रैक्टिस तो मॉर्निंग टाइम आई वोक अप लाइक 4:30, तो 4:30 से उठ के 5:20 इतना तक मेरा रेडी हो जाता है। तो 5:30 से 9:30 तक प्रैक्टिस करते हैं जिम पे मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग आवर में क्या होता है कि बहुत फ्रेश रहता है, और मॉर्निंग एक्सरसाइज जो है बहुत फ्रेश फील कराता है। और रात को लाइक टेबल प्रैक्टिस हम अपना रूम पे प्रैक्टिस करते हैं। मॉर्निंग टाइम जिम जाता है 4 आवर्स, एंड देन नाइट टाइम हम 1 आवर ऐसे अपना रूम पे टेबल प्रैक्टिस करता है। एंड कोई भी स्पोर्ट्स में एक कोच का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू हैव अ कोच इन योर फील्ड? कोच होना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इन एवरी स्पोर्ट्स ना। विदाउट कोच तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उन लोग हम लोग से पहले ट्रेन कर ऑलरेडी उन लोग ये फील्ड में होता है, तो उन लोग का बिना तो हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा लाइफ में भी 2 कोच आया है मेरा ये जर्नी में, तो उसका थोड़ा सा हम नाम लेना चाहता है। तो उसका जैसे कि यहाँ पे अरुणाचल में मेरा जो कोच है पागजा टैपोदिया है, मैम है वो मेरा, तो कोच भी है। तो लाइक उसने स्टार्टिंग कराया हम लोग का आर्म रेसलिंग को, मतलब वो फाउंडर है बोलने से। उसने वो शी इज मदर ऑफ 3 किड्स, तो उसका 3 बच्चा है, फिर भी मतलब इतना आर्म रेसलिंग में हम लोग को सिखा रहा है, टाइम दे रहा है। तो और मेरा जर्नी में उसने हमको आर्म रेसलिंग का जर्नी दिखाया, उसके लिए उसको भी हम थैंक्स देना चाहते हैं दिल से। और मेरा एक कोच है जो हम रिसेंटली उसके साथ ही ट्रेन कर रहा है, एलान बोल के, वो शिलोंग में रहता है। तो शिलोंग में पावर जिम को वही चलाता है। वो हमको सिखाया है कि कैसे एक्चुअल में आर्म रेसलिंग होता क्या है ना, आर्म रेसलिंग को कैसे मतलब किस तरीके से खेला जाता है, कैसे डिफेंस खेलना है, कैसे मतलब एवरीथिंग हम उससे मतलब सीखा है। तो मेरा लाइफ में 2 कोच है, तो दोनों को हम दिल से उन दोनों को भी थैंक्स देना चाहता है, क्योंकि उन दोनों का बिना तो हम इतना लेवल तक नहीं पहुंच पाते। एंड लाइक यू हैव सेड, यू हैव
represented our state not only nationally but internationally as well. So whenever you had gone for any competition, any tournament, how did you manage yourself financially? Financial. When it comes to financial, तो हर चीज़ में तो फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट चाहिए होता है ना, तो सपोर्ट तो मेरा फैमिली का साइड से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और टू बी ऑनेस्ट गवर्नमेंट वाला भी देता है, जैसे हम लोग का पेमा खांडू सर जी, मैम मामा नातुंग सर जी लोग भी बहुत सपोर्टिव है। और लेकिन इनिशियल में जब जैसे हम लोग बाहर जाना होता है तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैसा में होता है फाइनेंशियल में ना। जैसे हम लोग बहुत ऐसे नहीं, ऐसे पैसा का बहुत मेहनत भी करता है, हम लोग बहुत के लिए मेहनत भी करता है ना, मेहनत भी करता है प्लस पैसा भी, मतलब बाहर जाना होता है तो बहुत पहले पैसा तो देना होता है ना, स्पॉन्सरशिप मतलब चाहिए होता है, बाहर में फ्लाइट वगैरह का टिकट वगैरह, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहता है, कहाँ से मैनेज करेगा। हम प्रैक्टिस भी बहुत करके होने से भी पैसा जब उसमें समय पे पेड नहीं करेगा तो मेंटली प्रेशर रहता है कि हम जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। तो ये सब प्रेशर भी बहुत रहता है फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली तो झूठ नहीं बोलेगा, बहुत प्रॉब्लम है। तो हम लगता है कि जो स्पेशली अरुणाचल में बहुत ज़्यादा ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है, नॉट ओनली मी, तो उन लोग भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स है, उन लोग भी आगे जाना चाहता है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो उन लोग जो नहीं जा पाता है ना। तो हमको लगता है कि नॉट ओनली गवर्नमेंट, अपना फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स लोग जो सोसाइटी में जो जैसे बड़ा बड़ा ऑफिसर्स लोग होते हैं ना, अपना अपना तरफ से कंट्रीब्यूशंस करके उसको, जो टैलेंटेड प्लेयर्स लोग हैं, जो पोटेंशियल्स है, उन लोगों को थोड़ा आगे भेजने से ठीक है ना। मेरा तो एक साइड से मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो प्रॉब्लम होने से भी उन लोग से मेरा थोड़ा हो जाता है। और गवर्नमेंट वाला लोग भी, पेमा सर लोग भी अभी तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और हमको लगता है वो और ज़्यादा इसमें हम लोग और देखेगा ना, ये होप कर रहे हैं हम। Now that you are an international arm wrestler, how do you manage your professional life and your personal life? प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को तो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो हम दोनों को ही मैनेज कर लेता है। तो जैसे मेरा अभी जैसे मेरा तो फुल फोकस तो अभी मेरा गेम पे ही है, तो गेम को भी हम फोकस करते हैं, प्लस मेरा पर्सनल लाइफ जैसे फैमिली लोग को भी बात करना होता है, तो उन लोग को भी हम बात कर लेते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग को होता है, उन लोग को भी हम दोनों को बैलेंस करता है। What are your future plans? फ्यूचर प्लान्स तो मेरा स्पोर्ट्स में ही है, तो अभी तक तो स्पोर्ट्स में ही मेरा कैरियर जो 8 इयर्स हो गया, तो इस बार भी आफ्टर 20 इयर्स के बाद 20 इयर्स के बाद मैंने एशियन पे मतलब मेडल्स लेके आया कि ऐसे ही, और हम मेरा वर्ल्ड के लिए मेरा अक्टूबर का वर्ल्ड का है, तो उसको प्रिपरेशन करना है मुझे। And lastly, what advice would you like to give to the upcoming sports persons of our state? तो मैं वही बोलना चाहूँगी, इफ़ आई कैन देन एनीवन कैन डू इट। आपको क्या करना है बोलने से कि आपका फिजिकली मेंटली सेट होना होता है कि आपको ये करना है तो ये करना है, पहले तो वो होता है ना। तो आप कुछ भी फील्ड, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, कुछ भी फील्ड में आपको कुछ करना हो तो आपको वही है कि डेडिकेशन होना है, विल पावर तो स्ट्रॉन्ग होना है, बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, और कंसिस्टेंसी होना है ना, डिटरमाइन होना है। तो ये आप लेके चलेगा मेंटली फिजिकली, तो आप कुछ भी कर सकता है। और अभी अपकमिंग गेम अभी जो मेरा होने जा रहा है वो होगा कजाकिस्तान में, वो है वर्ल्ड का होगा, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो वो अक्टूबर में होगा। तो मैं गवर्नमेंट से वही बोलना चाहूँगी कि हम लोगों को, स्पेशली हम लोग का ये आर्म रेसलिंग अभी जो पार्टिसिपेंट्स लोग हैं जो खेलने जा रहा है, उन लोगों को फाइनेंशियली मदद कीजिए, जाने आने का और ट्रेनिंग का, और हम लोग का खाने पीने का, हम लोग का जो स्पोर्ट्स का जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको थोड़ा सा आप लोग देख दीजिए, वही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। Okay, Miss Ibilolen, you spared your time, you came here and shared many things about yourself and also about your sport, arm wrestling. Thank you so much for that. Thank you, ma'am. That was Miss Ibilolen speaking for the Weekly Sports Roundup. And with that, it is a wrap on this week's edition of the Weekly Sports Roundup program, which came to you from Akashwani, Itanagar. We'll be back next Saturday at 8 p.m. Until then, have a very good night.